DL should consider a range of quantitative factors and qualitative factors when deciding whether to go ahead with proposed production line project. Quantitative factors include the results of investment appraisal techniques, ठीक है, एक उसने टर्म यहाँ पे ऐड कर दी, such as net present value. इसको ये बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जिक्र पीछे हुआ था और एक क्वेश्चन भी आया था 4 मार्क्स का जिसके अंदर हमने वो सारी निकालनी थी। ARR एंड पेबैक, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटेटिव फैक्टर्स इंक्लूड हाउ द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज माइट बी इफेक्टेड बाय द इन्वेस्टमेंट। उसने ऊपर ना एक थोड़ा सा पैराग्राफ के अंदर इंट्रोडक्शन दे दिया और अब उन सब पॉइंट्स की ना वो नीचे बात करेगा। Payback is the time taken to return the investment. The payback period is 3 years exactly, and this is at least 2 years before the production line equipment is at the end and its useful life. This means that for the final 2 years, the production line will effectively be making profit for DL. ये इसने पॉजिटिव पॉइंट बता दिया उससे बहुत अच्छे से लिंक करते हुए कि वो 3 साल उसे लगेंगे, 2-3 साल अपने पैसे पूरे करने में और उसके बाद जो भी पैसे आएगा वो उसका प्रॉफिट है। A relatively quick payback is beneficial for DL as it reduces the pressure on cash flow, which may be important as DL has further plans for expansion, which will also require funds. ठीक है, ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उसने एवेल्युएशन भी दी हुई है, एनालिसिस भी दिया हुआ है कि जितना पेबैक पीरियड आपका क्विक होगा उतना बेनिफिशियल होगा। ये आपने टॉपिक कवर किए हैं ना सारे। इसके बाद वो बात कर रहा है DL should consider return on investment. ARR rate is 24%. ये इसने कैलकुलेट कर लिया किसी तरीके से। This should be compared to any Crichton rate that DL use for investment. अच्छा ये भी एक चीज़ होती है कि पढ़ी थी मैंने, मैं भूल गया। For investment or its current return on capital employed to give an idea of whether investment is worthwhile. The net present value appraisal also supports the investment as the sum of the discounted cash flow is greater than the capital cost, and PV is the most important appraisal technique as it considers the time of value of money. However, all these investment technique depends on the quality of the data used. If estimates are not based on robust data, then the appraisal may be misleading and sound decisions cannot be reached. ठीक है, ये फिर से evaluation की बात आ गई थोड़ी सी कि हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे ना कि ये हो सकता है आपकी assumptions जो है वो सही ना हो या फिर आपने जो डिसीजन मेकिंग की हो वो सही ना हो। DL faces a capacity constraint on future sales growth as it is operating at close to 90% capacity. Without investment, sales cannot significantly increase. The computerized production line will enable DL to increase efficiency as it will raise labor productivity with great efficiency unit growth. It will be reduced, and this will enable DL to be more price competitive without reducing the profit margin. Therefore, DL should make the investment to remain competitive in the market. ठीक है, in the short term, there is a danger that the investment may disrupt customer service if the changeover causes delays in delivery of customer orders. This would result in a reduction in the sales and could damage DL's reputation and therefore negatively impact long-term revenue and profit. ठीक हो गया। बड़ा अच्छा उसने लिखा हुआ है और बड़ा प्रोफेशनल आंसर उसने दिया हुआ है। मैं पानी पी लूँ। अच्छा, इसके बाद कमेंट्स में पढ़ते हैं। The first paragraph is a good example of limited knowledge and understanding. The candidate shows how knowledge of range of factors that should be considered when deciding about a proposed investment. It is therefore relevant knowledge. However, in a 12-mark question, A1 is not just about defining concepts or identify relevant factor to achieve level 2. A candidate needs to develop knowledge using key concepts or factors as part of the answer. In the second paragraph, the candidate demonstrates knowledge of meaning of payback and understand that a quicker payback is preferable and it reduces pressure on cash flow. अच्छा, अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि उसने ना पहले लिस्ट कर दिए थे ये पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। उसके बाद उसने डिफाइन किया, वो कह रहा है कि ये अच्छी बात है और डिफाइन करने के बाद उसने फिर उसके पॉइंट्स भी दिए। जब आपने पॉइंट्स इसको दोगे कितने ना, मार्क्स दिए इसने 12 में से? 12 में से 10 है, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है। वेरी गुड। ठीक है, बड़ी बात है।
In the second paragraph, candidate this shows developed knowledge. The candidate is awarded 2 out of 2 marks. The candidate shows a similar level of understanding of other investment appraisal techniques in subsequent paragraphs. ठीक है. अब यहाँ से एक आप आइडिया ले सकते हो इस स्टेटमेंट से कि उसने जो नंबर थे ना वो यहाँ तक पूरे कर दिए थे, लेकिन उसने फिर भी काफी ज्यादा डाटा लिखा है जो कि एज सच रिक्वायर्ड नहीं था. A2 application marks are also dependent on whether the application is limited or developed. Limited application is awarded when an answer demonstrates understanding of relevant context. The candidate uses the results of calculation. ठीक है. उसने जो ARR निकाल के बताया था ना वो इसकी एप्लीकेशन का पॉइंट बन गया. ठीक है. ये वही ऊपर वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था ना कि आपने सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना. उसने कॉपी पेस्ट नहीं किया बल्कि उसने उसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखा है. क्वेश्चन 3, A and B एज एविडेंस फॉर सपोर्टिंग दी इन्वेस्टमेंट. अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि ये 3 आपके पास क्वेश्चन आते हैं, A, B और C, और वो ये बता रहा है कि तीनों क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. आइडेंटिफाइड दैट द पेबैक पीरियड ऑफ 3 years leaves 2-year application is performed to relevant calculation. For example, correct. This is a further example of the limited application. Development application must be demonstrated by integrating multiple pieces of information from the case. For example, the candidate links the quick payback of 3 years plan for expansion. The firmly places the answer in the context of the business. AO3. Analysis marks are split into 2 levels, limited and developed. Analysis makes link between cause and effect. In this question, it might be the impact of the investment project on DL's customers or other stakeholders. For example, in recognizing that the investment project could disrupt customer orders and therefore result in a loss of sales. However, this is a limited chain of argument. वो कह रहा है कि ये जो इसने पॉइंट लिया ना ये लिमिटेड है. इसको Alright. मजीद इससे कॉन्सिक्वेंस का दिखाना था. The candidate could have developed this further by considering the impact of a loss of sales or profit. अगर वो इतनी सी लाइन मजीद डाल देता ना तो उसका पॉइंट पूरा हो जाता. The link made by the candidate is level 1. Analysis level 2 is about developing more extended chains of argument. This is demonstrated in the fifth paragraph. Here, the candidate links the investment to increase labor productivity and efficiency, and therefore a reduction in unit cost in resulting in DL being able to reduce prices without lowering profit margin. अब ये देखो उसने प्रॉपर डेवलप करके जो है ना वो आपको आंसर दे दिया. एनालिसिस का हाँ. पॉइंट आपका ऐसे होना चाहिए कि लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसकी वजह से यूनिट कॉस्ट कम होगी, तो वो अपनी प्राइसेस कम कर सकते हैं और विदाउट लोअरिंग प्रॉफिट मार्जिन. ये कॉस्ट कम करने से उन्हें अपनी प्राइसेस कम करेगी लेकिन प्रॉफिट के ऊपर इनका इफेक्ट नहीं आएगा. It should be noted that one piece of develop analysis is sufficient to gain both analysis marks. ये बहुत important point है. कौन सा ब्रो? ये ग्रीन वाला. कि ये यहाँ पे कि It should be noted that one piece of develop analysis. it's sufficient to get both analysis marks. Oh, nice. मतलब वो कहना चाह रहा है डुअल साइड ना करो अगर अच्छा एक तरफ कर देते हो. वो ये कह रहा है कि आपने सिर्फ एक पॉइंट की बात करनी है, आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स डालने ही नहीं है. कि अगर मैं 3-4 पॉइंट्स डाल दूं और 3-4 की अलग अलग एनालिसिस करके दूं ना तो नंबर उसने 2 देने हैं. बिल्कुल. वो जी आपको जी. 4-5 नंबर नहीं देगा उसके. तो आप एक लिखो लेकिन इस तरीके से करो जिस तरीके से उसने ऊपर प्रॉपर करके दिया, ना कि इस तरीके से जहाँ पे उसने सिर्फ लिमिटेड सा करके दे दिया. Perfect. Perfect. हाफ ऑफ द मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चंस आर फॉर For evaluation. evaluation. ठीक है. This requires the weighting of arguments, a judgment or recommendation contrasting the short term with the long term or consideration of the limiting factors in a decision. ये सारे वही पॉइंट्स आगे जो आपने अभी भेजी थी ना पेज में लिखा हुआ जो इसने कि नजर में थी. आपकी आर्ग्यूमेंट्स आगे, आपने जजमेंट इसके अंदर करके देनी है, आपने रिकमेंडेशन भी देनी है, आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन सारी बतानी है, लिमिटिंग फैक्टर्स बताने हैं आपने सारे. Alrighty. Alrighty.
Evaluation is best developed throughout an answer rather than just in the final paragraph. अब ये वही बात आ गई, आप लोग शुरू में कह रहे थे ना कि हम लोग एंड पे लिखते हैं, एंड पे लिख सकते हो, लेकिन द बेस्ट वे जो है ना वो यही है कि आप थ्रू आउट दी आंसर उसको करो। आपने कोई पॉइंट दिया, आपने साथ ही उसका आर्गुमेंट दे दिया। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कल दे रहा था एक बच्चे को कि फॉर एग्जांपल जिदान आपका प्लान बनता है कि आपने ना नॉर्दर्न एरियाज में जाना है छुट्टियों में, ठीक है, और हाँ जी। आपका इरादा ये है कि मैं जाऊंगा, मैं इंजॉय करूंगा और वहाँ पे वेकेशन अपनी गुजारूंगा, मजा आएगा, चिल हो जाएगा, फिर आके बंदा सुकून से फ्रेश होके कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये बात आपने डिस्कस की मेरे से, तो मैंने आपको इसका काउंटर हम्म, आर्गुमेंट फौरन से दे देना है कि भाई आप जाओगे, आपका खर्चा इतना आ जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ऊपर गई हुई है, इतना आपका खर्चा आ जाएगा, जाने का आने का टाइम ज़ाया होगा, इससे अच्छा आप बैठ के कोई पैसे कहीं और लगा लो या किसी और चीज़ पे कर दो। तो मैंने फौरन से आपके पॉइंट की एवेल्यूएशन कर दी, उसका फ्लिप साइड बता दी, उसकी आर्गुमेंट दे दी। इस चीज़ को हाँ कहते हैं जी। एवेल्यूएशन करना। आई समझ? ओके। कि आपने एक पॉजिटिव पॉइंट बताया मसले साथ में तो आ जाएंगे और साथ में की बता बजाय दिया कि भाई इसकी फ्लिप साइड ये हो सकती है। यार इस चीज में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये तो मैं इस चीज में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये तो आपके एनालिसिस ना हुआ। नहीं, एनालिसिस नहीं हुआ। आपने जब एक पॉजिटिव पॉइंट दिया ना, तो उसका एनालिसिस भी पॉजिटिव होगा। आपने अगर बताया कि भाई इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो हम्म। बढ़ेगी, तो उसका पॉजिटिव एनालिसिस ये होगा ना कि आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे एट द एंड, ठीक है। कॉल एंड होने वाली है। चलो, बिल्कुल जो भी ऐसे ही हो है। जाए। अच्छा, और पैराग्राफ में हर जगह में आंसर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल्ला आप साथ हो? क्या आप हमारे साथ हो अब्दुल्ला? नहीं नहीं, हेलो। नहीं अब आए। यस ब्रो यस। अब्दुल्ला अच्छा, भैया अब गायब भी हो हाँ, यार। हम बात एवेल्यूएशन की कर रहे थे। जी। ठीक है। तो एवेल्यूएशन की ये बात हो रही थी कि आपने एनालिसिस कर दिया, पॉजिटिव पॉइंट दिया, उसका एनालिसिस भी पॉजिटिव होगा। अब आप उसका नेगेटिव भी ठीक दो है। कि फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी बढ़ने से पहले आप ये बता दो कि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप हम्म। उसका बता दो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है। आप उसका ये बता दो कि ट्रेनिंग हम्म, देने के बाद हो सकता है वो जो सब आपका वर्कर है वो भाग जाए, आपको दोबारा से उसे रिक्रूट करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। तो हम्म। एवेल्यूएशन यही फैक्टर्स होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, आपकी लिमिटेशंस होती है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि भाई ये शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको साथ साथ लेके चलोगे तो वो खुद बता रहा है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। एवेल्यूएशन इज बेस्ट हम्म, डेवलप्ड थ्रू आउट एन आंसर रेदर देन जस्ट इन द फाइनल पैराग्राफ, क्योंकि जब आप साथ साथ काउंटर आर्गुमेंट देते हो ना, आपको पता होता है आप क्या लिख रहे हो। जब आप पूरा ऊपर लिख के नीचे आते हो ना, तो उसको लिंक करना भी जरा अजीब सा हो जाता है, क्योंकि आपने एक पॉइंट ऊपर जाके हम्म, लिखा है और आप नीचे जाके उसको लिंक कर रहे हो, हम्म। ठीक है। The conclusion should be more than a summary of what has already been stated. Evaluation must ठीक also है। be supported, so is usually based on preceding analysis. फिर से आपने एनालिसिस देना है यहाँ पे। जब आपने एवेल्यूएशन करनी है, सपोर्ट करना है किसी पॉइंट का, तो आपने फिर से उसका एनालिसिस करके बताना है कि इसकी वजह से ये फायदा होगा, उसकी वजह से वो होगा, उसकी वजह से वो होगा, वो ठीक है। और वो अच्छा। पॉइंट पहले लिखे हैं उससे डिफरेंट होने चाहिए, हाँ, डिफरेंट होने चाहिए। इट इज द मोस्ट लेकिन डिफिकल्ट आउटकम सेम। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल टू डेवलप इफेक्टिवली। हम्म, अब यहाँ पे बाकी बात यही हो रही है कि आपने ना अगर दोबारा से एक नया पॉइंट देना है एनालिसिस का, तो ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। आपने ऊपर लिख दी है जब बात, तो बात ये आती है, उसके ऊपर ये बात आपको बताई कि आपने बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है। आपने एक पॉइंट लिखो, दो पॉइंट लिखो, उसको डेवलप करके बता दो। जब आप सारे हम्म, पॉइंट्स ऊपर लिख दोगे, 4 से 5 पॉइंट, तो नीचे लिखने के लिए आपके पास बचेगा क्या? तो इसलिए हम्म। आपने ये चीज समझनी है कि आपने एक दो पॉइंट बहुत है, उसको अच्छे से डेवलप करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। इसके अंदर सारे मार्क्स आपकी डेवलपमेंट के हैं। ऑलराइट मैन। Evaluative comments allow judgments to be made. There are evaluative comments throughout this answer. For example, in the fourth paragraph, the candidate notes that the NPV result supports making the investment.
Also, evaluative comment, there is a limited supporting comment, so it is only level 1 evaluation. However, it could be drawn up later in the answer as a part of the overall judgment. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने थोड़ी सी ऊपर evaluation दे दी और फिर बाद में जाके हम्म, उसने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, तो एग्जामिनर उस चीज के नंबर देगा, 1 नंबर ऊपर से दे देगा, दूसरा नंबर नीचे से दे देगा। all right, all Level right. 2 and Level 3 evaluation required a developed judgment and weighing of some key arguments. The difference between the top levels of evaluation is that Level 3 requires evaluation in the business context. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत अच्छा आपके पास जो तरीका है ना लिखने का, उसने जो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा है ना, आप एंड पे उसी को सपोर्ट करो, ठीक है। Perfect. There is a good Hmm. balance of argument in the answer with the limitation of investment appraisal techniques considered. The fourth paragraph provides a development. अरे बुढ़ापा आ गया मेरा यार, मौसम में ही जी जी। किधर चले गए हो? The fourth paragraph provides a developed wing of argument regarding investment appraisal, but this is not हम्म, developed in context. वो कह रहे हैं डेवलप नहीं किया हुआ, डेवलप करना चाहिए। देयर इज अ सपोर्टेड जजमेंट इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फिफ्थ पैराग्राफ, हाउएवर दिस कुड हैव बीन डेवलप्ड, फिर से वही बात आ गई, इन कॉन्टेक्स्ट बाय रेफरिंग टू द इंक्रीज कंपटीशन फेस बाय डीएल रिजल्टिंग इन डीएल कंसीडर द नीड टू रिड्यूस प्राइसेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। आपने पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है, आपने सिर्फ एक पॉइंट लिख के अगर आप कह दो कि ना मार्क्स मिल जाए, तो उस पे आपको सिर्फ लेवल 1 के मार्क्स मिलेंगे। हम्म, The candidate does not give an overall judgment. This is usually required for a good evaluative response. It does not matter whether the candidate makes the judgment for or against, as long as it follows on from the arguments given and is in context. Evaluation in this answer is sufficient to reach the top level of 2, and therefore the total marks awarded is 10 out of 12. कि अभी भी उसकी गलतियां बीच में यही थी, उसने अपने काउंटर आर्गुमेंट जो लिखे ना उनकी डेवलपमेंट नहीं की, ठीक है, और उसने जजमेंट नहीं की प्रॉपर तरीके से। अगर वो दोनों चीजें कर लेना, तो उसका जो लेवल 3 है ना वो उसे मिल जाएगा। मतलब वही है कि ये बंदा एक तरह से सही से पढ़ ले ना और समझने के लिए पढ़े, तो बंदा ये अपने कॉमन एरर्स वगैरह और ये इम्प्रूवमेंट वगैरह पॉइंट्स ना सीख सकता है। इवन ये एनालिसिस वाली आपने बात कही है, इस तरह की चीजें देख के तो काफी फायदा हो सकता है बिल्कुल हमें। ऐसे ही है। अब जैसे ये हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा ना, तो हमारे सामने ये हम्म, एक पेज पे आ रहा है, ये जब आप लिखोगे ना, ये आपका तकरीबन 1.5 या 2 पेज का आंसर है। वो आपको हाँ यही जी। बताना चाह रहा है कि इतने लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखो, आप बस एक पॉइंट हम्म, लिखो और उसको एक्सप्लेन कर दो। आपका जो एक पेज आपको दिया होता है ना, वो मोर देन इनफ है। लेकिन आप जी। सारी चीजें पूरी करते जाओगे तो आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। चीजें पूरी करनी है, लेकिन ये नहीं कि ओवर लिख देनी है, मतलब हाँ, रेलिवेंट रह के पॉइंट रखो अपना एक्स्ट्रा काम। नहीं लिखनी, ओवर नहीं लिखनी, और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखनी, और रेलिवेंट रखना अधूरी अपना बात नहीं क्वेश्चन। करनी। अधूरी कहाँ, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, अब्दुल्ला साहब है। अब्दुल्ला भैया आई विद अस? यस 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 ओके, यस यस। यस अब्दुल्ला अब इज ये हियर। लास्ट हम लोग और कर रहे हैं, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। Common errors and general guidance for candidates. Definitions provide useful evidence to the examiner of knowledge, but candidates must ensure that they also include evidence or develop knowledge in answers. इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन से बड़ा आपको फायदा हो जाएगा। A lack of selectively in case material can waste valuable exam time. Ensure that each detail taken from the case is focused on answering the question. इसका मतलब वही है कि आपसे जो उसने क्वेश्चन में पूछा ना, बस उससे मिलती जुलती बात करो, फजूल बात नहीं करो। जैसे शुरू में हमने पढ़ा था ना, वो बता रहा था कि वो चाहता है कि वो खुद कंट्रोल करे सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका सिर्फ जो टाइम है ना वो ज़ाया करेगा। कैंडिडेट ऑलराइट मैन। often develop only simple chain of argument and therefore do not get the second mark for AO3. Good developed analysis of key factor analysis will achieve level 2 and offer provide support for evaluation. कि आपने अपना जो डेवलपमेंट करनी है ना वो प्रॉपर तरीके से करनी है, जैसे हमने ऊपर 2-3 एग्जांपल्स देखी है।
Candidates डन देना डन। may be tempted to consider a large number of arguments that are relevant to a decision. This will tend to result in limited analysis and evaluation. It is more effective to focus on 2 or 3 key issues. ये पॉइंट ज़हन में रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कर दी। मार्क करो ना एक दफा, ठीक है, मैं पढ़ लूँ फिर। इट इज मोर इफेक्टिव, ठीक हो गया। कि वो यहाँ पे ये चीज समझा रहा है कि कैंडिडेट्स क्या करती है, वो लार्ज नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे देते हैं, ढेर सारे पॉइंट्स दे देते हैं, लेकिन वो उनको एक्सप्लेन या डेवलप नहीं कर पाते। आप 2 से 3 इश्यूज को डिस्कस करो, उनको डेवलप करो, उनका एनालिसिस करके दो, वो होता है बेस्ट ऑप्शन, ना कि आप मल्टीपल चीजें लिख दो। Evaluation is more than a summary. At the end of the answer, evaluation should be evident in each argument, including the answer as it is given for answer in the question. ये बहुत अच्छा पॉइंट इसने दिया है कि आपने ऊपर जो 2-3 हाँ। पॉइंट्स लिखे हैं ना, आपने उन सब पॉइंट्स का अलग अलग एवेल्युएशन देना है। उसके दे फिर देना, ये से करते हैं। फिर उसके वही 2 तरीके आ जाएंगे, या तो आप उसका एवेल्युएशन उसके साथ ही कर दो, या फिर आप नीचे आके एक पैराग्राफ बनाओ, उसके अंदर एवेल्युएशन दे दो। मैं फिर साथ ही बंदे कर देना चाहिए मसलन भाई, साथ करते तो बहुत बेस्ट है, टाइम वो आपको खुद कह रहा है कि बेस्ट ऑप्शन ये होता है। वेयर मतलब भाई फिर सीखना पड़ेगा ना, असल में आदत अपनी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, where evaluated comments is made in relation to different issues and argument, it is more likely that at least level 2 will be awarded. Conclusion often make a recommendation without providing supporting evidence. ये फिर से बहुत दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए फिर से आपने कोई स्टेटमेंट देनी है, एनालिसिस करना है। This is not evaluation. The best conclusion answers the question and indicate the key supporting factor in context for making that judgment. जजमेंट। हाँ। आपने रेकमेंड करके उसकी सपोर्टिंग जो फैक्टर्स है, जो बात है, वो आपने जरूर बतानी है, तो आपको नंबर मिलेगा। नहीं बताओगे तो आपको लेवल 2 के नंबर मिलेंगे, जैसे इधर मिले हुए हैं। लेवल उसने एंड पे जाके ए, सपोर्ट कर दिया था, लेकिन नंबर नहीं दिए। क्योंकि उसने वो कीपॉइंट्स दे दिए है उसको, जिसको चाहिए थे। ठीक है, बाकी मजीद हम्म, अगर आप समझना चाहते हो कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको मिल जाएगी। आप इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो। हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक है, और इस चीज़ को भी हम्म, देख लो, ये आपको वेटेज बता रहा है। हाँ जी, ठीक सबकी हो वेटेज गया। तकरीबन एक ही जितनी है, मतलब सबको आपने लिखना ज़रूरी है। हाँ, ऑलमोस्ट रेलिवेंट ही है सारा कुछ इधर। ठीक है, 60 मार्क्स का पेपर होता है आपके पास, 1 hour 45 minutes होते हैं। तो मैंने इसकी हम्म, कैलकुलेशन की थी, आपके पास एक नंबर के लिए ना, 1 मार्क्स के लिए हम्म, आपके पास एस्टिमेटेड होते हैं 1.45 मिनट्स। मतलब कि एक 1 hour 40 seconds कर लो आप, तो 1 minute and 40 seconds। हाँ, तो 12 मार्क्स के लिए आपके पास हुए 12 marks हो 17.4 मिनट्स। ठीक मतलब है, कि सारा, मतलब तकरीबन तकरीबन 18 मिनट नहीं, 17 मिनट कर लो आप, 17 मिनट ही कर लो, 18 या 17 मिनट कर लो। और 8 मार्क्स के लिए इतने होते हैं, 11 मिनट तकरीबन। ठीक है, ठीक हो। ये 2 पॉइंट मैंने जो आपको बताया ना, ये ऐसी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जब भी जाता हूँ हर सब्जेक्ट के हम्म, लिए, मैं ये चीज़ें कैलकुलेट करके जाता हूँ, और मैं इस टाइम फ्रेम के अंदर अपना जो आंसर होता है ना, वो लिखता हूँ। इवन मैं भी इसी आपने तरह केस स्टडी पढ़ने के लिए भी टाइम देना है अपने आप को, मतलब कि ये 17 मिनट आपके ज़्यादा है, फिर भी इसमें से आपने 1 मिनट निकाल देना अपनी केस स्टडी के लिए, आपने 5 मिनट देने केस स्टडी को। केस स्टडी ब्रो 10 मिनट लेगा 10 एटलीस्ट। मिनट देगा ना, फिर आपने बार बार पीछे आके पढ़ना भी तो है दोबारा से। तो बिल्कुल। 5 से 8 मिनट वो कर लो। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक एक नंबर को कितना टाइम देना है, वो आपने गिन के जाना है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट और होगी। इसमें हमें जो की सेविंग है वो ग्रेड के लिए भी और हर लिहाज से 8 मार्क्स की जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है। और बेस्ट ऑप्शन अपना टाइम मैनेज करने का यही है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है ना, उसने आपसे मांगा क्या है, आपने क्या क्या लिखना है। ओवर लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आप कम लिख के आ जाओगे तो उसके मार्क्स आपको बड़े लिमिटेड मिलेंगे। आपको पता होनी चाहिए आपने कितना लिखना है,
आपको उसने कहीं भी नहीं बोला कि आपने बहुत ज़्यादा लिखना है, उसने हर दफ़ा यही बोला है कि आपने लेंथी नहीं लिखना, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। इस चीज़ को फ़ॉलो कर लोगे तो आपके पास टाइम बहुत है। अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करोगे तो फिर वही होगा कि आपका जो पेपर है वो टाइम पे खत्म नहीं होगा।